اگر آپ کے پاس ایک بڑی خوبصورت شادی کی لائن ہو تو یہ آپ کی بڑی زبردست شادی کروا دے گی، یعنی کہ آپ کی لو میرج بھی ہو جائے گی. لیکن اسی کے نیچے اگر آپ کی ایک چھوٹی سی لائن یوں ٹوٹے اور ایک یہ لائن ٹوٹے، چھوٹی چھوٹی دو لائنیں موجود ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، چاہے ایک لائن موجود ہو یا دو لائنیں اس طریقے سے بنی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شادی سے پہلے یا تو آپ کی منگنی بریک ہوگی، یا کسی کے ساتھ آپ کی دلی اٹیچمنٹ ہوگی، محبت میں ناکامی ہوگی، منگنی ٹوٹے گی، کسی کے ریلیشن میں آپ ہوں گے، آپ کا ریلیشن بریک ہوگا. تو شادی سے پہلے یہ کسی نہ کسی ریلیشن کے بریک ہونے کا بڑا پاورفل سائن. یہ جو دو لائنیں، چھوٹی چھوٹی لائنیں شادی کی لائن کے نیچے ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے آپ کسی کے ریلیشن میں رہے ہیں، یا آپ کی منگنی بریک ہوئی ہے، یا آپ نے کسی کے ساتھ خاموش محبت کی ہے. دیکھیں، اگر شادی کی لائن سیدھی آ کے دل کی لائن کے ساتھ نیچے کی طرف جھک جائے، یہ ہوتی ہے دل کی لائن، اور یہ دل کی لائن کے ساتھ جڑ جائے ایسے، تو کیا ہوگا؟ ایسے انسان کا جو لائف پارٹنر ہوتا ہے اس کی ڈیتھ پہلے ہوتی ہے. یعنی کہ اگر مرد کے ہاتھ میں ہے تو اس کی عورت کی ڈیتھ، اس کی وائف کی ڈیتھ پہلے ہوگی. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ شادی کے فوراً بعد ہی ڈیتھ ہو جائے گی، چاہے 10 سال کے بعد ہو، 20 سال کے بعد ہو، یا 30 سال کے بعد ہو. اگر آپ کی دل کی شادی کی لائن دل کی لائن کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ بیوہ ہونے کا یا رنڈوا ہونے کا سائن ہے، اور آپ کا لائف پارٹنر آپ سے پہلے اس دنیا سے جائے گا، چاہے وہ 20 سال کے بعد جائے، 40 سال کے بعد جائے، یا 60 سال کے بعد جائے، لیکن جائے گا پہلے وہ. شادی اس وقت زیادہ اس میں پرابلم آ جاتے ہیں جب آپ کی شادی دو بھاگوں میں تقسیم ہو جائے، دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، اتنا بڑا دو شاخہ بن جائے. دیکھیں، اگر شادی کی لائن میں بالکل چھوٹا سا دو شاخہ بنتا ہے، اتنا چھوٹا سا، تو یہ بتاتا ہے چھوٹے موٹے اختلافات کا، چھوٹی موٹی سوچوں کا. لیکن اگر یہ دو شاخہ اتنا بڑا بن جائے، ایک شاخ ادھر اور یہ ایک شاخ ادھر، تو پھر لائف پارٹنر کا ایک ساتھ رہنا، ایک ساتھ زندگی گزارنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. یا تو وائف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میکے بیٹھ جاتی ہے، ہو سکتا ہے وہ ڈائیورس نہ لے، لیکن آپس میں ان کا وہ جو جسمانی تعلق ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اگر شادی کی لائن سے چھوٹی چھوٹی شاخیں نیچے کی طرف گرنا شروع ہو جائیں یوں، اور آخر میں کوئی لائن یوں شادی کی لائن کو کاٹ دے، تو یہ اختلافات بڑھنے کا سائن ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پہ جب بھی لائن نیچے کی طرف گرے گی، لڑائی جھگڑے بڑھیں گے. اور اگر کوئی لائن ایسے برے طریقے سے شادی کی لائن کو کاٹ دیتی ہے تو پھر لڑکی کی طرف سے یا لڑکے کی طرف سے کوئی بھی ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو اس شادی کو بریک کر دیتا ہے. یعنی کہ کسی تیسرے بندے کی وجہ سے انسان کی شادی ٹوٹ جاتی ہے. وہ سسرال والوں میں سے بھی کوئی رشتہ ہو سکتا ہے، اور وہ لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے بھی کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے جو ان میاں بیوی میں آپس میں طلاق کروا دے گا، اور اسی کی وجہ سے ڈائیورس ہو. اگر کسی مرد کے ہاتھ میں دو گہری شادی کی لائنیں موجود ہوں، دونوں ہی لمبی ہوں، اور ایک کے اوپر یہ اولاد کی لائنیں بھی بنی ہوں، یہ والی، اگر دونوں ہاتھوں میں اتنی گہری لائنیں موجود ہوں گی اور اوپر والی میں اولاد کی لائنیں ہوں گی، تو کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے پہلی شادی میں اولاد نہ ہو، اور دوسری شادی جو ہے وہ انسان اولاد کی وجہ سے کرے، اور اس وجہ سے انسان کو دوسری شادی کرنی پڑتی ہے اولاد کی وجہ سے. اور جس میں انسان کی اولاد ہوتی ہے وہی شادی انسان کی کامیاب رہتی ہے، وہی شادی عام طور پر چلتی ہے. تو نیچے والی جو ہوتی ہے وہ بریک ہونے کے چانس ہوتے ہیں، اور جس میں اولاد کی لائنیں شو ہو رہی ہوتی ہیں وہ شادی چل جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اگر شادی کی لائن اوپر کی طرف اٹھ جائے، چھوٹی انگلی کی طرف یوں اٹھ جائے یا یوں اٹھ جائے، ان کے اس کا رخ اوپر کی طرف ہو، تو ایسے لوگ شادی کی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں. ایسے لوگ جسمانی لذت کے لیے یا نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے تو شادی کر لیں گے، لیکن شادی کے کچھ دنوں کے بعد، 2 مہینے 6 مہینے کے بعد، جب ان پر ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہے، جب انہیں وائف کے خرچے اٹھانے پڑتے ہیں، تو اس وقت پھر وہ ہیلے بہانے کر کے اس شادی کو بریک کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں. اور ایسے لوگ عام طور پر جو شادی کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا پاتے یا اپنی شادی کو توڑ لیتے ہیں، اور یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. شادی کی لائن اوپر کی طرف جائے یا نیچے کی طرف گرے،
दोनों ही बुरी समझी जाती है। बस दफ़ा ना आपकी शादी की लाइन जैसे टूटी टहनी नहीं होती, यानी कि पहले तो शादी की लाइन होगी थोड़ी डार्क, लेकिन आखिर में बिल्कुल ये पतली पतली होके टूटी टहनी की तरह नीचे की तरफ गिर जाती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो हक़ ज़ौजियत अदा करने के काबिल नहीं होते, जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार होते हैं, औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होते, जिसकी वजह से ऐसे लोगों की कोई भी शादी नहीं चलती। इनकी पहली शादी भी ब्रेक हो जाती है, दूसरी करें दूसरी भी ब्रेक हो जाती है। शायद वाली कोई बात है कि कोई बहुत ही शरीफ औरत ये वो सब कुछ बर्दाश्त करके उस मर्द के साथ ज़िंदगी गुजार ले तो वो एक अलग बात है, लेकिन आम तौर पर ऐसे लोगों की कोई भी शादी कामयाब नहीं होती जब टूटी टहनी की तरह शादी की लाइन नीचे की तरफ गिरती है, कमज़ोर हो। अगर शादी की लाइनें बड़ी बारीक बारीक हो, ऐसे बारीक बारीक ज़्यादा सारी लाइनें आपको नज़र आएँ यूँ, अगर ये छोटी छोटी लाइनें मर्द के हाथ में नज़र आएँ या औरत के हाथ में नज़र आएँ, ऐसे लोग बड़े दिल फेंक होते हैं, हुस्न परस्त होते हैं, जिनकी सारी ज़िंदगी खूब से खूबतर की तलाश में एक से बढ़ के एक खूबसूरती ढूंढेंगे और कभी एक रिश्ता ब्रेक कर देंगे, फिर दूसरा उससे बेहतर नज़र आएगा, फिर उसकी तरफ भागेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, फिर तीसरे की तरफ भागेंगे। तो सारी ज़िंदगी ये लोग रिश्ते तोड़ते रहते हैं और शादी तक पहुँचते ही नहीं हैं, और अगर शादी कर भी लें तो कभी कभी अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से अपनी शादी तोड़ लेते हैं। तो ऐसे लोगों को मुस्तकिल मजाजी के साथ किसी एक ही शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने दिल को राज़ी कर लेना चाहिए, ज़्यादा की लालच नहीं करनी चाहिए, तभी इन लोगों की ज़िंदगी कामयाब हो सकती है, शादी कामयाब हो सकती है। अगर शादी की लाइन एक लाइन यूं चल रही हो और एक लाइन आगे यूं चल रही हो, इन दो लाइनों को कोई लाइन यूं जोड़ दे, ठीक है, बिल्कुल दो लाइनों को जोड़ दे, काटे नहीं लेकिन दो लाइनों को जोड़ दे, तो इसका मतलब ये होता है कि जिस बंदे के साथ आपकी मंगनी हुई थी, मंगनी फिर टूट गई और उसी शख्स के साथ दोबारा आपकी मंगनी हो जाएगी और उसी के साथ आपकी दोबारा शादी हो जाएगी। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी उसी बंदे के साथ, जिस बंदे के साथ आपकी डाइवोर्स हो चुकी होती है, यहीं से एक लाइन जो होती है ये ऊपर जाके इसके साथ जुड़ जाती है। तो ये भी उस बंदे के साथ जिसके साथ आपकी डाइवोर्स हो चुकी थी, उसी के साथ दोबारा शादी होने का ये बड़ा पावरफुल साइन है कि दो शादी की लाइनों को अगर कोई बारीक सी लाइन जोड़ देती है तो ये रीयूनियन मैरिज होती है, दोबारा उसी बंदे के साथ शादी होना, ये उसका बड़ा पावरफुल साइन है, इसको आप नोट कर लें। जितनी शादी की लाइन खूबसूरत थोड़ी सी गुलाई में होगी, इतनी वो इंसान लव मैरिज की तरफ जाएगा, जितनी सीधी और स्ट्रेट होगी इतना वो अरेंज मैरिज की तरफ जाएगा। तो शादी की लाइन में अगर थोड़ा सा घुमाव हो, हल्का सा, बहुत ज़्यादा घुमाव ना हो, उसको हम लव मैरिज के लिए बड़ा अच्छा मानेंगे। और जो बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट शादी की लाइन होती है, बिल्कुल सीधी, ऐसे लोग अरेंज मैरिज करते हैं लेकिन अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत मुखलस होते हैं। ऐसे लोगों की शादी भी बड़ी ज़बरदस्त कामयाब रहती है, बल्कि इज इक्वल टू लव मैरिज के बराबर इसको समझा जाता है, क्योंकि ऐसे लोग शादी के बाद लव करते हैं अपनी वाइफ के साथ। तो इस लिहाज से अगर थोड़ी सी गुलाई में है तब भी आपकी लव मैरिज होगी, और अगर सीधी है तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी शादी लव मैरिज के बराबर ही समझी जाएगी, आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। कौन से साइंस हैं जो शादी को ब्रेक कर देते हैं? एक तो अगर शादी की लाइन पे ये इस तरीके से जजीरा बन रहा हो, शुरू में जजीरा बनेगा तो शुरू में शादी नहीं होगी, बार बार रिश्ते आएंगे, लड़की को देखे वो चले जाएंगे, इनके शादी में रुकावट होगी। और अगर शुरू में जजीरा ना हो तो दरमियान में जजीरा हो तो शादी के 5 साल बाद या 10 साल के बाद लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, तो शादी ब्रेक हो सकती है। अगर आखिर में जजीरा हो तो फिर ओल्ड एज में जाके इनको हो सकता है 30 साल के बाद या 40 साल की उम्र के बाद भी डाइवोर्स हो जाएगी, उसका बड़ा पावरफुल साइन है। और इसी तरह अगर काला तिल हो, काला तिल भी शादी की लाइन पे बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, यहाँ पे भी, उभार पे भी, और शादी की लाइन पे तो बिल्कुल ही बुरा समझा जाता है। तिल भी शादी को तोड़ देते हैं, लड़ाई झगड़े करवाते हैं, और ये भी नह साइन है। देखिए, ये होता है आपका सैटर्न माउंट। सैटर्न माउंट पर अगर आपको यहाँ पे काला तिल नजर आता है तो ये काला तिल क्या करेगा? काला तिल आपका रुपये पैसे का नुकसान करवाएगा, आपको किसी बीमारी का शिकार कर देगा, आपको मेंटली जो इंसान को डिप्रेशन मिलता है, डिप्रेशन की तरफ आपको लेके जाएगा, मायूसी, डिप्रेशन, और इसके अलावा रुपये पैसे का लॉस, बीमारी, रोड एक्सीडेंट,
रुपए पैसे का बड़ा लॉस हो जाना, बिजनेस ख़त्म हो जाना, स्पेशली ऐसे लोगों का जो बुढ़ापा होता है वो बड़ा तकलीफ़ों में गुजरता है अगर यहाँ पर काला तिल हो तो। देखिए, ये होता है आपका सैटर्न माउंट। सैटर्न माउंट पर अगर आपका यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत स्टार बने, ठीक है, तो ये स्टार आपको रातों रात अमीर भी बना सकते हैं, आपको बेइंतहा शोहरत भी देगा, दौलत भी देगा, आपको इंटरनेशनल फेम दिलवा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि ये सारा जो जितने भी इसके खाते हैं वो एक ही नुक्ते से गुजरे, और ये जितने भी इकट्ठा करने वाले खाते हैं ये साइज में भी बराबर हो। यूं अगर ये सारे खत एक ही नुक्ते में से गुजरेंगे तो फिर इसको हम अच्छा स्टार मानेंगे। अगर ये स्टार डिस्टर्ब होगा तो फिर ये मायूसी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें इंसान के अंदर पैदा करेगा, इंसान को बहुत ज़्यादा परेशानी देगा, तन्हाई का शिकार कर देगा और डिप्रेशन देगा। सैटर्न माउंट पर फिश का साइन हो तो ये फिश बहुत आपको कम नज़र आती है। सैटर्न माउंट पर मैंने बहुत कम देखी है, लेकिन चूंकि पामिस्ट्री में फिश साइन को एक अच्छा साइन माना गया, तो अगर यहाँ पर आपको सैटर्न माउंट पे ये फिश का साइन नज़र आता है तो ये फिश आपको ओल्ड एज में बेतहाशा रुपया पैसा देगी, बिजनेस में आपको कामयाबियाँ मिलेंगी, बुढ़ापा आपका बड़ा पुरस्कून होगा, ये आपको ट्रैवल भी करवाएगी, हज उम्रा भी करवाएगी, और जो भी आपकी दिल की ख्वाहिशात होंगी उन ख्वाहिशात की तकमील भी ये फिश पूरा करवाती है। ठीक है जी, आपके जितने भी ख्वाब होंगे उन ख्वाबों की ताबीर आपको मिलेगी, सफ़र करेंगे, रुपया पैसा आपके पास आएगा, और बेतहाशा नींदें भी आपको ये फिश देती है। बाज़ दफ़ा आपके ना यहाँ पे ग्रिल का साइन होता है इस तरीके से आड़ी तिरछी लाइन में, ये होता है आपका सैटर्न माउंट। सैटर्न माउंट ये आपका सैटर्न माउंट का एरिया है, ठीक है जी, बड़ी उंगली के नीचे। अगर यहाँ पर आड़ी तिरछी लाइनें होंगी तो ये आपको कंफ्यूज कर देगी, आपको ये समझ नहीं आएगी कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, यस और नो के चक्कर में आपको रखेगी, आपको समझ नहीं आएगी कि मुझे क्या करना चाहिए। ओल्ड एज में जाके हो सकता है आपकी जॉब ख़त्म हो जाए और उसके बाद आपको आगे ये समझ ही ना आ रही हो कि मैंने बिजनेस करना है, मैंने जॉब करनी है, मैंने अपनी ज़िंदगी के मामलात को कैसे लेके आगे चलना है। तो ये ग्रिल जो होती है ये डिप्रेशन भी देती है और ये इंसान की कुव्वत फैसला छीन लेती है। इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि मैं ये काम करूँ ना करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो इस लिहाज से ग्रिल कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। सैटर्न माउंट पर हमेशा ट्राइएंगल का साइन आपको बेतहाशा दौलत देता है, प्रॉपर्टी देता है, ये किस्मत की लकीर है और ये आपकी दिल की लकीर है। अब ट्राइएंगल का साइन इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, और ये डुमरों का जो साइन होता है ये इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, और ये इस तरीके से भी हो सकता है। तो ट्राइएंगल जिस मर्जी शेप में हो, चाहे ये किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो, ट्राइएंगल हमेशा आपको नॉलेज देगी, विजडम देगी। आप अपने नॉलेज की वजह से ज़िंदगी में बड़ा ग्रूम करेंगे, आपकी ज़बरदस्त जॉब हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा मर्तबा मुकाम आपको अपने नॉलेज और अपनी ज़बरदस्त एजुकेशन की वजह से हासिल होता है। तो जो ट्राइएंगल है ये आपको विजडम देती है, रूहानियत देती है, स्पिरिचुअलिटी देती है और हर लिहाज से इंसान को कामयाब इंसान बनाने में हेल्प करती है। अगर आपकी किस्मत की लाइन सैटर्न माउंट पे जाए और यहाँ पे एक स्क्वायर का साइन बने, तो स्क्वायर का साइन हमेशा इंसान को प्रोटेक्शन देता है। यानी कि इसमें हो सकता है आपका कोई रुपये पैसे का नुकसान होने वाला हो, ये स्क्वायर का साइन आपको बुढ़ापे में हादसे से महफूज रखेगा, रुपये पैसे के नुकसान से महफूज रखेगा, आपको डिप्रेशन की तरफ अगर आप जाने वाले होंगे तो डिप्रेशन से भी बचाएगा। तो हर लिहाज से स्क्वायर का साइन जो होता है ये इंसान को प्रोटेक्ट करता है, हर लिहाज से, हादसात के लिहाज से, बीमारी के लिहाज से, रुपये पैसे के नुकसान के लिहाज से, डिप्रेशन के लिहाज से, हर लिहाज से इंसान को प्रोटेक्शन मिलती है। स्क्वायर साइन बहुत ही अच्छा, मुबारक और साथ साइन। अगर आपके सैटर्न माउंट पर, ये होता है आपका सैटर्न माउंट, जहाँ पे क्रॉस का साइन हो, क्रॉस का साइन हो या ये आपकी किस्मत की लकीर हो और इसको कोई आड़ी तिरछी लाइनें इस तरीके से काट दे। क्रॉस का साइन भी आपका रुपये पैसे का नुकसान करवा सकता है, आपका रोड एक्सीडेंट करवा सकता है,
और ये जो आड़ी तिरछी लाइनें होती हैं ये भी सेम वो क्रॉस वाला ही रिजल्ट देती हैं। ये राहु लाइन्स की तरह काम करेंगी। सडन आपका रोड एक्सीडेंट हो सकता है, सडन आपका रुपए पैसे का नुकसान हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीटिंग आपके साथ हो सकती है, बहुत बड़ा धोखा आपके साथ हो सकता है, और कोई बहुत बड़ा रोड एक्सीडेंट भी आपके साथ हो सकता है। और इसके अलावा डिप्रेशन की तरफ भी आप जा सकते हैं, ज़हनी टेंशन आपको मिल सकती है। तो क्रॉस का साइन या किस्मत की लाइन को अगर कुछ लाइनें काट रही हो तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। देखिए, अगर आपकी किस्मत की लकीर के साथ सैटर्न माउंट पर 2 या 3 लाइनें मजीद किस्मत की लाइन को सपोर्ट करें तो आपको 2 या 3 जगह से इनकम आएगी ओल्ड एज में, ठीक है। और इसी तरह अगर आपका ये त्रिशूल बन जाए, यानी कि आपकी किस्मत की लाइन ऊपर जाके 2 शाखा या 3 शाखा हो जाए, तो सेम वही रिजल्ट आपको मिलेगा कि आपको अल्लाह ताला ने इस कदर टैलेंट दिया होगा कि आप 2-2 बिजनेस कर लेंगे, या मे बी बिजनेस प्लस जॉब करें, 2-2 या 3-3 जगह से आपको इनकम आना शुरू हो जाएगी और बुढ़ापा आपका बहुत सुकून से गुजरेगा, बेतहाशा रुपया पैसा आप कमाएंगे और मरते दम तक आपको रुपए पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैस कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं, और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।